Hello, good morning students, and once again welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next and the remaining example of the miscellaneous exercise of the topic limits. In previous free lecture we completed some typical example of miscellaneous exercise which are short critical, short higher thinking questions, hot type questions. So today I am going to start the next question of the limit, that is what example number 18 of exercise miscellaneous. Okay, so look at the example. Limit x tends to 1, numerator exponential function, denominator trigonometric function. यहाँ पर 2 raised to x है, 2 raised to 2x minus 2a. It means this is an exponential function. Sin square x minus 1, this is a trigonometric function. If we replace x by 1, अगर x की जगह पर 1 हमें replace किया तो it becomes definitely 0 by 0 form. अब check करो ये 0 by 0 form आएगा. So we have to use the substitution method here. So that's why I put here x is equal to 1 plus h. As x tends to 1, h tends to what? 0. So now this limit becomes L, limit h tends to 0. So जहाँ पर x है वहाँ पर 1 plus h रखो, 2 raised to 2 into bracket 1 plus h minus 2 minus 2 raised to 1 plus h plus 1 divided by sin square 1 plus h minus 1. So we have to replace x by 1 plus h. This plus 1 and minus 1 getting cancelled here. Limit h tends to 0. 2 से multiply करो, 2 raised to 2 plus 2h minus 2, 2 raised to 1 into 2 raised to h plus 1, ये minus sign as it is, whole divided by sin square h. ये 1 plus h पावर में है तो वी कैन स्प्लिट द बेस 2 raised to 1 into 2 raised to h, 2 raised to 1 into 2 raised to h. सो 2 raised to 1 लिखने की जरूरत है, सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं. दिस 2 and दिस 2 कैंसल. सो नाउ इट बिकम्स, यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर. सो L इज इक्वल टू लिमिट, नाउ h टेंड्स टू 0. ये 2 raised to 2h है, सो 2 raised to h होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं उसको, minus 2 into 2 raised to h plus 1 divided by sin square h. So denominator में sin square h है, so we have to divide on both side by h square. Denominator को h square से divide करेंगे, numerator को भी h square से divide करेंगे. So that is the purpose, because what the requirement is, what there should be upon h square in the denominator and also in the numerator. So numerator is a complete square of what? 2 raised to h minus 1 whole square. Denominator is sin square h. This is now the function. So मैंने यहाँ पर 2 स्टेप एट ए टाइम किया है. एक स्टेप क्या किया मैंने, ये डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय h स्क्वायर किया, बिकॉज दैट इज आवर रिक्वायरमेंट. न्यूमरेटर इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ व्हाट? 2 raised to h minus 1 whole square, a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. नाउ हम उसको सेपरेट लिमिट करेंगे न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का. ये देखो न्यूमरेटर का लिमिट h टेंड्स टू 0, कंप्लीट स्क्वायर लिखेंगे 2 raised to h minus 1 by h होल स्क्वायर. लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर, लिमिट ऑफ द फंक्शन sin h by h होल स्क्वायर. Now complete conditions of exponential functions are satisfied here. This is log 2 whole square divided by 1 square 1. So right answer is what? Correct answer is log 2 whole square. So this is the final answer. We can't write 2 into log 2. ये 2 log 2 नहीं हो सकता, 2 log 2 log 4 होता है. So log 2 whole square, this is the answer of example number 18. सबसे important यहाँ पर क्या है? Substitution method. We have to substitute this here. Put x is equal to 1 plus h. So this is the completion of example number 18. So इसके बाद जो 19 एग्जाम्पल है उसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वहाँ पर भी सब्सटीट्यूशन मेथड है. यू कैन सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1 प्लस h. सो 19 आप करो, मैं 20 एग्जाम्पल सॉल्व करके देता हूँ. सो 20 एग्जाम्पल में क्या है देखो, 90 में स्किप कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 19. So what is the example number 20? Limit x tends to 1,
रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय log of 1 minute I will check. Example number 20. Root x minus 1 divided by only log x. So this is, दिखने में तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल दिख रहा है, बट ये यहाँ पर हमें x टेंस टू 1 है, लॉगरिथमिक फंक्शन डिनोमिनेटर में है. सो फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन x मस्ट बी टेंस टू 0 बाय अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. सो यहाँ पर अगर हमने x की जगह पर 1 रिप्लेस किया तो ये डेफिनेटली 0 बाई 0 आपको लगेगा. 1 minus 1 is 0, log 1 is 0, it's a 0 by 0. So we can use the substitution method, but before using substitution we have to rationalize this. हम इसको rationalize करेंगे, that is better. Numerator में ये irrational है, उसको rational करेंगे. So multiplied on both side by root x plus 1 divided by root x plus 1. a minus b, a plus b, the identity. That identity is a square minus b square. So x minus 1 in the numerator, denominator log x. X minus 1 upon log x. ये factor as it is in outside root x plus 1. And this root x plus 1 is the determinate form. ये determinate form है बिकॉज यहाँ पर x की जगह 1 रिप्लेस किया तो 1 plus 1 2 हो जाएगा. 1 by 2 इज नंबर, इट इज अ नंबर, सो इट इज अ डिटर्मिनेट फॉर्म, इट इज आंसर है. बट ये अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. देखो x की जगह 1 minus 1 0, log 1 also 0. सो हियर लिमिट x टेंस टू 0, ये फैक्टर नीचे ट्रांसफर करता हूँ मैं 1 अपॉन log x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं. इनटू taking limit separately of this. Why? Because it is a determinate form. Determinate form means what? Indeterminate form means what? Indeterminate form ये होता है 0 by 0 और infinity by infinity. बट ये determinate form is कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस किए तो हमें 0 by 0 फॉर्म नहीं मिलेगा, यहाँ पर नंबर मिलेगा 1 upon 1 plus 1 2. 1 plus 1 is 2. So taking outside 1 by 2. 1 by 2 limit x tends to 1 upon log x divided by x minus 1. Log x divided by x minus 1. So ये 0 by 0 form है. So that's why we have to use here substitution method. Put x is equal to 1 plus h. As x tends to 1, h tends to 0. So L becomes, limit becomes 1 by 2. Outside term 1 by 2 as it is, limit h tends to 0. 1 upon log of x की जगह पर 1 plus h डिवाइडेड बाय x माइनस 1. x इज इक्वल टू 1 प्लस h है तो x माइनस 1 क्या होगा? h होगा. सो यहाँ पर h. सो दिस इज अ फॉर्मूला सेटिस्फाइड, इज अ फॉर्मूला, इट इज 1. सो 1 by 2 into 1 by 1. सो व्हाट इज आंसर? 1 by 2. सो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन 1 by 2. सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट रैशनलाइज किया, देन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया. रैशनलाइज करने के बाद ये जो फैक्टर है यहाँ पर उसको मैंने सेपरेट लिखा बिकॉज दैट इज अ डिटर्मिनेट फॉर्म और ये स्टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म. सो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एक ही ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन मेथड. और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के बाद द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डेफिनेटली इवेल्युएट. ओके, सो लिमिट इज व्हाट? 1 by 2. सो 1 by 2 इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 20. 18 20 हुआ, 19 आपको करने को दिया बिकॉज 19 इज अ वेरी सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 18. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 21. Now let's see the example number 22. और एक 21 नंबर मैंने एग्जाम्पल स्किप किया विच इज़ वेरी सिंपल. लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 माइनस कॉस एक्स. वहाँ पर आपको रैशनलाइज करना है. मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड बाय रूट 1 माइनस कॉस एच. सो दैट बिकम्स 1 माइनस कॉस एच होल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, दैट इज साइन स्क्वायर एच. 1 प्लस कॉस एच से मल्टीप्लाई करो. सो वो सिंपल एग्जाम्पल आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा. बट ये एग्जाम्पल इट इज़ अ कम्प्लीटली हायर ऑर्डर थिंकिंग. HOT हॉट टाइप क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग है बिकॉज इस टॉपिक का रिलेशन सीक्वेंस सीरीज से है. जो मैंने AP, GP, HP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन
अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सिग्मा, स्पेशल सीरीज, उस टॉपिक का यहाँ पर रिलेशन है. सो इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल एग्जाम्पल. ओके, सो ये मुझे आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मैं इस लास्ट टर्म को फोकस कर रहा हूँ, मैं एन स्क्वायर को. ये तो पहले छोड़ दो, ये एन स्क्वायर क्या है? इट इज़ अ स्पेशल सीरीज. इसको हम ऑड टर्म की सीरीज है. देखो ये जो सीरीज है 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 2n -1 ऑड नंबर. सम ऑफ ऑड इंटीजर, 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू 2n -1. इसका SN ये AP है. इसका SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इन ब्रैकेट 2a + n -1 इंटू डी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन SN का फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म n/2 2a, a is 1 2 n -1 d is also 2, d is 2. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 है. फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2. सो d की जगह पर 2 रखा, a की जगह पर 1. सो इसको हम एक्सटेंड करेंगे. दिस इज n/2 इन ब्रैकेट 2a + 2n -2 + 2 -2 कैंसल. सो दिस इज n/2 into 2n. So 2 cancel, it is n square. So instead of this n square की जगह पर हम ये टर्म लिख सकते हैं by using arithmetic progression, sum of nth term of arithmetic progression. So this l becomes, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. थोड़ा लेंदी है, थोड़ा राइटिंग में ज़्यादा है. x टेंड्स टू 1. देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x + 3x² + 5x³ plus 2n -1. I hope you getting the clear picture of the solution. 2n -1 into x raised to n माइनस इस एक n स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं. व्हाट इज दैट? 1. मैं इसको नीचे लिखता हूँ, दैट इज द बेटा. इसको ब्रैकेट करता हूँ, ये माइनस साइन. n स्क्वायर इज नथिंग बट दिस 1 + 3 + 5 + 7 + up to 2n -1 and whole divided by x -1 as it is. Completely different example. So just इस n स्क्वायर की जगह पर ये मैं लिख सकता हूँ. मैंने एक्सप्लेन भी किया है by using arithmetic progression, sum of nth term of arithmetic progression. So now difference equate करेंगे, first minus first, second minus second, third minus third and last minus nth term minus nth term. So this becomes what? करस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस लेंगे. फर्स्ट इज x -1, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x² -1. 5 कॉमन लेंगे, x³ -1. ये डैश 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 प्लस डैश 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 प्लस. यहाँ पर 2n -1 कॉमन लेंगे, 2n -1 इन ब्रैकेट x raised to n -1 and whole divided by x -1. Focus on every step. सबसे important ये लास्ट टर्म. Now this is the corresponding difference. Corresponding term का difference. Corresponding term means what? First minus first, second minus second, third minus third, fourth minus fourth, nth term minus nth term. This is called as the difference between the corresponding terms. Okay, now separate divide करेंगे. यहाँ पर मैं स्टेप लिखता हूँ. L is equal to limit x tends to 1 x -1 upon x -1 plus 3 into x² -1 divided by x -1 plus 5 into complete bracket करो, that is also better. 5 into x³ -1 upon x -1 plus डैश डैश डैश. इसको मैं रिमूव करता हूँ, जगह कम है. प्लस ये 2n -1 कॉमन इन ब्रैकेट x raised to n -1 upon x -1. इसको क्लोज. ये अपना 22 नंबर के एग्जाम्पल. ओके, सेपरेट डिवाइड किया, बस यही स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप बाकी कुछ भी नहीं है. x -1, दिस टर्म कैंसल, लिमिट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट टर्म, प्लस 3 इंटू ये 1 अब लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 3 इंटू ये जो फॉर्मूला है, दैट इज फॉर्मूला मेथड. यहाँ पर मैं फॉर्मूला मेथड मेंशन करता हूँ. ये देखो फॉर्मूला क्या है, जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में है.
लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. That formula is n into a raised to n minus 1. This is the formula method, that the formula of algebraic function x raised to n minus a raised to n upon x minus a, x tends to a, that formula is n into a raised to n minus 1. And we are very much familiar with this formula. So here यहाँ पर a 1 है, n 2 है, 3 है, यहाँ पर n है. So this is 2 into 1 raised to 2 minus 1, 5 into 3 into 1 raised to 3 minus 1, plus dash 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 plus 2n minus 1 into n into 1 raised to n minus 1. This is equal to 1 plus a 1 into 1, a 1 plus 3 into 2 plus 5 into 3 plus up to dash 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 2n minus 1 into n. 1 raised to anything is 1, 1 raised to square, 1 square, 1 raised to 1, 1 raised to 2, 1 raised to n minus 1, it is 1. So मैंने ये 1 लिखा नहीं है. So 1 plus 3 into 2, 5 into 3 plus dash up to 2n minus 1 into n. So इस 1 को मैं 1 into 1 लिखता हूँ. Now this is a product of two terms, 1 into 1, 3 into 2, 5 into 3, 2n minus 1 into n. इसकी जो पहली टर्म है 1, ये 3, 5, ये 2n minus 1, we can convert this into sigma notation. Sum of odd numbers, that is 2r minus 1, odd integers 2r minus 1. Second number जो है ना 1, 2, 3, 4, 5 up to n, we can write this is r. R is from 1 to n. So this is equal to sigma of 2r square minus r. ये सिग्मा भी हमारा हुआ है जो सीक्वेंस एंड सीरीज में है. फर्स्ट नंबर इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज 2r minus 1, सेकंड टर्म इज 1, 2, 3 अप टू n इज r. ओके, सो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ और जगह बहुत कम है यहाँ पर. ये 2 आउटसाइड में सिग्मा ऑफ r स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ r, सेपरेट सिग्मा लिया यहाँ पर. r is from 1 to n. Got it? Now this is implies L is equal to, L is limit. So r square का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या फॉर्मूला n इंटू n minus 1 इंटू 2n minus 1 by 6. r का फॉर्मूला n इंटू n minus 1 by 2. So now ये 2 3 are 6 cancel. n into n minus 1, n into n minus 1 common. n into n minus 1 common. In bracket 2n minus 1 by 3 minus 1 by 2. So n into n minus 1 cross multiply करो. 4n minus 2 minus 3 divided by 6. 4n minus 2 minus 3 divided by 6. So answer is n into n minus 1 into 4n minus 5 whole divided by 6. So 2r minus 1 into 2r, 2r minus 1 into r, 2r square minus r. So n into n minus 1 into 2n minus 1 by 6, 2 3 are 6. सो यहाँ पर n इंटू एन माइनस 1 काउंट 2n माइनस 1 बाई 3 और यहाँ पर 1 बाई 2, 2n 4n माइनस 2 माइनस 3 ये करेक्ट आंसर. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल. ओके, सो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जाम्पल है. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है n स्क्वायर. कॉपी करो, अंडरस्टैंड करो. हर चीज़ मैंने 2 3 बार एक्सप्लेन की है. सो ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा अंडरस्टैंड होना चाहिए. सो दिस इज द completion of example number 22. Okay, now we'll start the 23 and 24, which is also completely different. ये जो फॉर्मूला है दैट इज आर स्क्वायर का फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 है, नॉट माइनस देयर, दैट इज प्लस n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n into n plus 1 common,
4n प्लस 2 माइनस 3, यहाँ पर -1 आएगा, ये +1। सो ये जो फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज में आखिरी एक्सरसाइज में हुआ है। सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सिग्मा आर स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और सिग्मा ऑफ आर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, नॉट माइनस, यहाँ पर प्लस है। ओके, सो दिस इज द small correction in the last answer. So this is the 21. Now we'll take 22nd, 23rd. Now let's see the example number 23rd. In example number 23rd, this is a trigonometric function. Limit x tends to 0 1 upon x to the power 12. ये भी बहुत ही डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में कभी भी नहीं दिया। ये 1 अपॉन एक्स टू द पावर 12 एज इट इज़, देखो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करो, बहुत डिफिकल्ट नहीं, एवरीथिंग इज सॉल्युबल, हर कोई चीज़ सॉल्व कर सकते हैं उसको हम। ये लास्ट टाइप में यहाँ पर मैं cos x रेस टू 4/4 कॉमन लेता हूँ। ये फर्स्ट 1 माइनस कॉस x स्क्वायर बाय 2 टेकिंग माइनस cos ऑफ x रेस टू 4/4, तो ये प्लस बन जाएगा इन ब्रैकेट 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। टेकिंग cos ऑफ x रेस टू 4/4 कॉमन बट विथ माइनस साइन, इट बिकम्स +1, दिस बिकम्स माइनस, ये टर्म तो हमने कॉमन लिए, ये फर्स्ट फैक्टर एज इट इज। नाउ विल गेट this is limit x tends to 0 1 upon x to the power 12 in bracket, this factor is repeated 1 minus cos of x square by 2 into a first into 1 minus cos x raised to 4/4. Got it? A factor 1 minus cos x to the power 4/4. We know that ये formula सबसे important formula 1 minus cos theta. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. So this becomes limit x tends to 0 1 minus cos theta 2 sin square, इसको बाय 2 करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 4/4 इंटू 2 इज 8, इसको बाय 2 करना है। ये थीटा है, ये भी थीटा है, थीटा बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स रेज टू 4/8 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 12। हम इस एक्स टू द पावर 12 को, ये एक साइन स्क्वायर है, मीन्स एक कंप्लीट स्क्वायर है, सो एक्स रेस टू 4 एक्स रेस टू 8 करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे। देखो कैसे होता है यहाँ पर, ये 2 इंटू 2 4 एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 4/8 इंटू एक्स रेस टू द पावर 8। ये 4 + 8 इज 12, एक्स टू द पावर 12 को मैंने स्प्लिट किया x रेस टू 4 x रेस टू 12। अब हम इसको सेपरेट लिमिट लेंगे, ये 4 आउटसाइड, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट में ऐड करेंगे साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ये होल स्क्वायर इनटू, सेपरेट लिमिट नहीं लिया तो भी चलेगा, आप करो प्रोसीजर, साइन एक्स रेज टू 4/8 अपॉन एक्स टू द पावर 4 होल स्क्वायर। ये 8 को मैंने अंदर शिफ्ट किया तो एक एक्स रेज टू 4 होल स्क्वायर बनेगा, एक्स रेज टू 4 होल स्क्वायर इज एक्चुअली एक्स रेज टू 8, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज एक्चुअली एक्स रेज टू 4, ये जस्ट एडजस्टमेंट, दिस इज एल। नाउ 4, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या है देखो,
साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 ये होल स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बाय 4 चाहिए। 1/4 से डिवाइड किया, 1/16 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 4 स्क्वायर इज व्हाट 16। 1/4 से डिवाइड, 1/16 से मल्टीप्लाइड इनटू साइन x raised to 4/8 divided by x raised to 4/8। 1/8 से डिवाइड, 1/64 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 8 का स्क्वायर कितना है 64, 4 का स्क्वायर 16। सो दिस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो दिस इज 1, 4 into 1 into 1/16 into 1/64, 4 4s are 16, 1/4 into 64, 256. So what is the answer? 256 is 1/256 is the limit. Got it? बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत टफ नहीं, लेकिन डिफरेंट है, जजमेंट में डिफरेंट है। एक कॉमन एग्जांपल नहीं होते, इसको थोड़ा अलग थिंकिंग होती है। सो अलग थिंकिंग क्या, यहाँ से कॉमन लेना, cos x raised to 4/4, वो भी माइनस, यहाँ पर +1 बन जाएंगे, यहाँ पर माइनस। दिस इज फर्स्ट फैक्टर विच इज कॉमन, 1 minus cos x raised to 4/4। सो दिस इज 1 minus cos थीटा, दिस ऑल्सो 1 minus cos थीटा, 2 sin square θ/2, ये रेफरेंस है, दिस इज रेफरेंस पॉइंट विच इज़ वेरी मच कॉमन इन द लिमिट्स। ये लिमिट्स में बहुत बार ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया है। सो 2 sin square θ, 2 sin square θ, θ इज हियर दिस एंड हियर दिस। सो x raised to 12 को x raised to 4, x raised to 8 किया एज पर रिक्वायरमेंट, और उसको सिर्फ एडजस्ट किया बाद में। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 23rd। विल टेक नाउ नेक्स्ट, दैट इज लास्ट एग्जाम्पल 24। Look at the last example of the topic limits. So this is the example number 24 of miscellaneous exercise 7 point, that is limits. So ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज में नहीं थे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, बट इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़्ड टू x, इस फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट लिमिट्स एट इन्फिनिटी है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़्ड टू x, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं करना पॉसिबल नहीं है। एक रूल है लिमिट का, वो मैं रूल यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) रेज़्ड टू g(x), function raised to function f(x) raised to g(x). So we can write this limit x tends to a f(x) raised to limit x tends to a g(x). So ये जो रूल है लिमिट का, ये मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी है, बट इस फॉर्मूला जो अपना लिमिट्स एट इन्फिनिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये यहाँ पर सेटिस्फाई होना नियर अबाउट नॉट पॉसिबल। सो बेस्ट वे हम ये रूल अप्लाई करेंगे, f(x) रेज़्ड टू g(x), दिस इज f(x), दिस इज g(x). सो हियर इसका लिमिट सेपरेट, इसका भी लिमिट सेपरेट, और वो अपना लिमिट एट इन्फिनिटी की जो फंडामेंटल थ्योरी है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो, सो दिस इज L इज इक्वल टू limit x tends to infinity, function is what 8x square plus 5x plus 3 divided by 2x square minus 7x minus 5 raised to limit x tends to infinity what 4x plus 3 divided by 8x minus 1, limit of base, limit of power separately at same x tends to infinity, at x tends to infinity. Here highest power of variable is 2, here highest power of variable is 1. So here we have to divide x square on both side, here we are divide x on both side. So this will be, देखो L limit x tends to infinity, x square से divide, x स्क्वायर से डिवाइड, इन पावर
a 24 number example. Limit x tends to infinity, x से divide, highest power of variable 4x plus 3, 8x minus 1, 2x square minus 7x minus 5, here 8x square plus 5x plus 3. So limits at infinity, the most important process is what? We have to divide on both sides by the highest power of variable. In base, the highest power of variable is x, that is 2, that is x square. In power, the highest power of variable is 1, that is x. So x से divide करेंगे power में, और base में x square से divide करेंगे. So now this will be limit x tends to infinity in bracket 8 plus 5 by x plus 3 by x square 2 minus 7 by x minus 5 by x square. Limit in the power x tends to infinity in bracket 4 plus 3 by x 8 minus 1 by x. Got it? So this is 8 plus 0 divided by 2 minus 0. So you can mention the reason 4 plus 0, 8 minus 0. ये रीजन जो है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई x टेंस टू 0. सो यहाँ पर लिख नो नीड 8 बाई 2 इज 4, 4 बाई 8 इज 1 बाई 2, 4 raised to half is 2. So this is the answer of this last question number 424 of miscellaneous exercise of the topic limits. Okay, so सबसे important topic यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ख़त्म नहीं होता कोई भी चीज़, बट यहाँ पर ही कंप्लीट हुआ है. सो इस पे CET हम बाद में लेंगे. सो लिमिट्स ऑफ फंक्शन, फर्स्ट इज अलजेब्रिक फंक्शन, trigonometric function, exponential function, logarithmic function, and limits at infinity. So almost this content are over here. So this is one of the important topic of the branch calculus. इसके बाद में continuity, which is completely based on this topic limits. So we'll start on the next day the continuity. So that is the second part of the limits. Okay, so this is the enough study of the limits. So we'll stop here. Thank you very much. So stay tuned on this YouTube channel Math Mentor for next topic continuity. Thank you very much.